السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں حاضر ہوئی ہوں خیام ناول کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ہے کو حویلی کے برآمدے میں اماں جی بے سکونی سے ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ اماں کیوں بے سکون پھرتی ہیں؟ کہیں تو قہوہ بنا دو؟ ایک طرف کو بیٹھی نفیسہ بیگم نے پوچھا۔ حویلی کی عورتوں کی طرح ہی سر پیر چادر میں خود کو ڈھانپے وہ خالدہ بیگم دونوں باقی ملازموں کے ساتھ زمین پر دوپٹے پھیلائے گھوٹا چن رہی تھی۔ نہیں بشیرہ، جا چھوٹے شاہ کو بلا کر لا۔ خود جھولے پر ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ بشیرہ کے بلانے پر شامر جو ہی برآمدے میں داخل ہوا تمام ملازمیں سر منہ مزید ڈھانپتی ہوئی باہر کو نکل گئی۔ وہ آ کر سیدھا اماں جی کے قدموں میں بیٹھا، ان کے ہاتھ چوم کر بولا، کیا فکر کھائے جا رہی ہے اماں؟ تو شہر چلا جا۔ اس کے سر پر ہاتھ پھرتی اس سے منت کر رہی تھی۔ وہ کبھی مجبور تو نہ ہوا کرتی تھی، اب کیوں؟ وہ کمبخت، ہائے میں تھا مرا، میرا شہزادہ ٹھیک نہیں، وہ شہر میں شہزادے کو مار دے گا، اسے میرے پاس لیا۔ وہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ اس سے بات کی ہے آپ نے؟ نہیں، بات ہی تو نہیں کرتا، مگر یہ جو دل ہے نا، نحوست مارا، تھکتا ہی نہیں اسے سوچ سوچ کر۔ اسے پتا چل جاتا ہے کہ اس کا ٹکڑا چیتھرا چیتھرا ہو رہا ہے۔ جا اسے دنیا سے بچا کر میرے کول لے آ، جا میرا لال، میرا پتر، دیر نہ کر۔ اماں میری بات تو سنے، میں کرتا ہوں اس سے بات۔ مجھے لگا کہ وہ ٹھیک نہیں تو قسم کھاتا ہوں اسے اٹھا کر لانا پڑا تو لے آؤں گا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کہاں آئے گا، وہ بھی ضد کا پکا تھا، نہیں آئے گا۔ سر ہلائے شاہ میر کو جانے کو کہا۔ اس کے جاتے ہی خالدہ بیگم بولی، اماں کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ آرس ٹھیک ہوگا، اس کے پاس اس کے اپنے ہیں۔ رہنے دو بھابھی، کیا سمجھاتی ہو انہیں؟ ان کو تو وہ پتا نہیں کون سی سزا سنائے بیٹھا ہے، یہی پریشان ہوئے ماری ماری پھرتی ہیں۔ انہیں کوئی سمجھاتا، انہیں کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ کہتی تو نفیسہ بیگم ٹھیک تھی تو کہاں کسی کی سنا کرتی تھی۔ مصطفیٰ صاحب اپنے بستر پر ٹیک لگائے کسی کتاب کے مطالعے کرنے میں مگن تھے۔ نہلا بیگم نے انہیں پکارا، مصطفیٰ۔ جی بیگم کہیے۔ کتاب بند کرتے وہ ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے حیام کے معاملے میں جلدی کر دی ہے؟ نہیں اور ہاں بھی، لیکن میں مطمئن ہوں۔ کیوں؟ شاید وہ مطمئن نہیں تھی، اس لیے کہ وہ اپنوں میں رہے گی۔ اپنوں میں بھی کیا، ہمارے ساتھ ہی اپنی نظروں کے سامنے دیکھتے رہیں گے تو تمام ڈر ختم ہو جائیں گے۔ کیوں فکر کرتی ہیں آپ؟ نرم نگاہوں سے اپنی بیگم کو دیکھا۔ کہتے تو آپ ٹھیک ہیں، لیکن وہ جھجکیں۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا ایک دفعہ اگر ہم اس کی مرضی پوچھ لیں؟ ڈرتے ڈرتے سوال داغا۔ نائلہ، آئندہ ایسی بات مت کرنا، وہ میری بیٹی ہے، مجھ سے زیادہ معلوم ہے کہ اس کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ لہجہ ایک دم تلخ ہوا۔ کہتے ساتھ ہی کتاب کا مطالعہ دوبارہ شروع کر دیا۔ صاف اشارہ تھا کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ نالا بیگم خاموشی سے وہاں سے اٹھائیں۔ آرس کچھ دنوں سے آفس تو آیا تھا، لیکن دھیان کاموں میں بالکل نہیں تھا۔ وہ تو ابھی سوگ میں تھا، ماتم کا نہ تھا، اپنے رشتوں اور اپنی محبت کو رو رہا تھا۔ اسے بار بار حیام کے الفاظ یاد آ رہے تھے اور ان لفظوں میں چھپی بد دعا۔ وہ کانپ جاتا تھا۔ فون کی بجتی رنگ ٹون اسے حقیقت کی دنیا میں واپس لائی۔ ہاں شامیر، بول یار، خیریت ہے؟ وہ کچھ نہ بولا۔ پیچھے ٹھیک ہے نا؟ بولنا یار۔ مگر دوسری طرف کی خاموشی اسے بے چین کر رہی تھی۔ حیرت کی بات ہے میرے یار، ادھر تو مجھ سے ان کے بارے میں سوالی ہے اور ادھر وہ تیرے لیے خوار ہو رہی ہیں۔ اتنا پیار تو کوئی سگوں سے بھی نہیں کرتا۔ اس کے الفاظ میں چھپے طنز کو آرز نے خوب محسوس کیا۔ تو مجھ سے جل رہا ہے یار، اپنے دوست سے، اپنے بھائی سے۔ وہ اتنا دیر بعد آج مسکرایا تھا، شاید اپنے درد کو وہاں تک نہ پہنچنے کے لیے دیوار کھڑی کر رہا تھا۔ تجھ سے چلوں گا؟ پاگل، تو پاگل ہو گیا ہے۔ تو آ کیوں نہیں جاتا یار؟ کیوں سزا دیے ہوئے ہیں انہیں؟ انہیں سزا نہیں دی ہی کب ہے میں نے؟
سزا تو میں خود کو دی ہے شامر۔ گہری سانس بھرے وہ اپنا دل آہستہ آہستہ باہر ڈیل رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے نا آرز؟ یار تو ٹھیک نہیں تو مجھے بتا نا۔ دیکھ تیرا بھائی تیرے لیے کچھ بھی کرے گا، بس تو مجھے بتا۔ کاش کہ بتا دینا اتنا آسان ہوتا۔ تجھے بتا کر تجھے کھو دیا، جیسے سب کو کھو دیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو سب کچھ بتا رہا تھا۔ پہلے کب کچھ اس سے چھپاتا تھا وہ۔ کس نے چھوڑ دیا تجھے؟ مشل نے، بازل نے، اور وہ ایک پل کو خاموش ہوا۔ اور مشل کا نام سنتے ہی اسے مال میں ٹکرانے والی دونوں لڑکیاں یاد آئی۔ وہ انہیں پہچان گیا تھا مگر پھر بھی تعارف نہ کروانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس دن آرس بھی وہی موجود تھا، ورنہ ضرور ملتا۔ اور وہ جھلی لڑکی، اس نے بھی تیرے یار کو چھوڑ دیا ہے۔ شامی اس کے دل کی کیفیت سے آگاہ تھا۔ وہ دونوں جگری دوست تھے، کیسے نہ جانتے ایک دوسرے کے دل کی باتیں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں بتاؤں گا نا سب کو، تیرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں بتاؤں گا کہ تو نے یہ سب کیوں کیا۔ وہ اسے بہلا رہا تھا۔ شامیر، وہ سمجھتی ہے میں انا میں قید ایک پجاری ہوں جو صرف خود کو پوچھتا ہے۔ وہ مجھے بددعا دے کر گئی ہے یار۔ کوئی بددعا نہیں دی اس نے تجھے۔ شامیر نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ دیکھ اب تو بھی ڈر رہا ہے نا میرے لیے۔ خیر مجھے ضروری کام ہے، بعد میں بات کروں گا، کہتے ہی کال کاٹ دی۔ سید زادے، میں جانتی ہوں نا کہ تم نے کبھی مجھ سے کبھی اپنی محبت کا اظہار کیا، نہ ہی میں نے پلٹ کر دو محبت کے میٹھے بول بولے، مگر محبت میں بھی بھلا کبھی اظہار کی ضرورت ہوتی ہے؟ محبت تو بن بولے اپنے ہونے کا احساس دیتی ہے۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا فلاں کے محبوب نے اس سے اظہار محبت کر ڈالا، تو مجھے ہنسی آتی ہے۔ محبت کرنے والوں کو محبت کیا ہوتی ہے پتہ ہی نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ محبت اظہار تو نہیں مانگتی، وہ تو ساتھ مانگتی ہے۔ دیکھو میں نے بھی تمہارا بس ساتھ ہی تو چاہا تھا، مگر معلوم ہوا تمہیں تو خبر ہی نہیں کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ اب تو مجھے خود پر ہنسی آ رہی ہے۔ چلو چھوڑو، ہاں میں نے تمہیں اپنا قتل معاف کر دیا، لیکن محبت کا جو نقصان تم نے کیا ہے وہ کون معاف کرے گا تمہیں؟ تمہاری اسیر سید زادی۔ حیام اب کے روئی نہ تھی، بس خاموش رہی تھی۔ اس نے شاید چپ ساتھ لی تھی، اس نے یقین کرنا چاہا تھا کہ عارض حسن اس کا نہیں۔ وہ اس کے لیے ہر وعدے پر یقین کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی روح، وہ تو کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، اپنے محبوب کے ایک دیدار کی پیاسی تھی۔ وہ خط لکھنا نہ چھوڑ پائی تھی، انہیں البتہ ایک لکڑی کے بکسے میں ڈال دیتی تھی۔ وہ اب ڈر گئی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ مزید اس کی محبت کی رسوائی ہو، مگر جب نصیب میں رسوائی ہی ہو تو کوئی کیسے بھاگ سکتا ہے؟ تمام خطوط یوں سنبھال کر رکھے تھے کہ جیسے ایک دن وہ سب شاید بول اٹھے۔ عارض حسن نہ صحیح کہیں کبھی زندگی کے کسی موڑ پر وہ اس کی محبت کی صداقت کے گواہی میں ہی بول اٹھے شاید۔ آنسوؤں کو تو شاید اپنی من پسند جگہ مل گئی تھی، اور وہ اس لڑکی کی آنکھوں کے تمام دیے بجھا کر بسنے کو آ گئے تھے۔ لیکن ایک بدلاؤ آ گیا تھا۔ آنسو اب اس کی بولی سمجھنے لگے تھے۔ وہ چاہتی کہ یہ رک جائیں تو وہ جمود اختیار کر لیتے۔ وہ چاہتی کہ آنکھوں کے کٹورے خشک رہیں تو مانو کو وہ نین تو بس ایک بنجر علاقہ تھے۔ وہ جو کہتی کہ بہہ لو تو اس شدت سے بہتے کہ ہچکیوں کا سلسلہ بن جاتا۔ نانا بیگم نے اسے بات کا آغاز کرتے ہی سمجھایا، مگر وہ جانتی تھی کہ موضوع کیا ہوگا، اور جب سمجھانے بجھانے سے ہٹ کر اصل موضوع پر بات کی گئی تو اپنی اماں کی بے چینی ختم کرنے کے لیے اس نے حامی بھر لی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ انہیں معلوم ہو کہ وہ خوش نہیں، اور وہ اس گلٹ میں رہے وہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہ کر سکی۔ اس نے اپنے ماں باپ کی تمام باتیں سن لی تھی، اور وہ جان گئی تھی کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ وہ پچھتا رہی تھی۔ وہ عارض حسن نہیں بننا چاہتی تھی، وہ اپنے نصیب میں مزید سیاہی نہیں اتارنا چاہتی تھی۔ وہ اب تک ایک شخص کی دی گئی ذلت کو سنبھال نہیں پائی تھی، تو وہ کیسے خود وہ سیاہی اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر تھوپ لیتی؟ وہ اپنے لیے اتنی کٹھور نہیں ہوئی تھی، لیکن دوسری طرف اس کی ماں تھی۔ وہ انہیں کیا بتاتی، سچ یا جھوٹ؟ سچ ایسا جس میں دنیا بھر کی کرواہٹ موجود تھی، یا پھر جھوٹ جس میں سچائی کا تو ہرگز کوئی بھی قطرہ موجود نہ تھا؟
वो अपने बेड पर आड़ी तिरछी लेटी छत को तके जा रही थी। जहन दूर किसी नुक्ते को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई मगर वो वहां मौजूद ना थी। आने वाला खुद ही अंदर आ गया। वो देखने को तैयार ना थी। वो गया ही नहीं शायद। वो भी बस जिद था। आखिर को उसे उठना पड़ा। सामने बादल खड़ा था। एक लम्हे को वो उसे देखकर हैरान हुई मगर अगले ही पल उस हैरानी का नामो निशान ढूंढने को ना मिलता था। जी बोले। आवाज में पहले सी नरमी मौजूद ना थी, और होती भी क्यों। हयाम ने रिश्तों का ये रूप पहली बार देखा था। अब तुम अपने भाई से ऐसे बात करोगी? अच्छा, तो आप मेरे भाई हैं? मैं भी कुछ देर पहले ही समझी थी, और मगर किसी दूसरे रिश्ते की डोर थामने की तगदो में आप मुझसे खो गए हैं। आंसू को इसकी बोली समझ आ गई थी, तभी कतरा कतरा बहने लगे। मेरी गुड़िया रो मत। वो 2 कदम पीछे हटी, मगर उसका हाथ थाम गया। तुम मेरी बहन हो, और मैं भाई हूं तुम्हारा, हमेशा रहूंगा। दुनिया चाहे इनकारी रहे, तुम यूं इनकार करोगी तो तुम्हारा ये भाई मर जाएगा। वो रोते हुए बादल के सीने से जा लगी। तुम खामोश रहो बस। जो हो रहा है होने दो। बस मुझ पर यकीन करो, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। यकीन है ना मुझ पर? वो दोनों हाथ से उसका चेहरा थामे। भाइयों वाले मान के साथ यकीन का सवाल ही था। उसने हाँ में सर हिलाया। उसके पास खोने को अब कुछ ना था, कुछ भी नहीं। रात में खाने के बाद मशल उसे बुलाने आई, लेकिन हर मर्तबा की तरह उसने इस बार भी इनकार कर दिया। तुम क्यों नहीं चली गई? वो हयाम के पास बैठ गई। तुम जानती हो, तुम उस एक शख्स की वजह से अपनी मां को तकलीफ दे रही हो। वो परेशान है तुम्हारे लिए। मैं परेशान हूं बादल भाई। किसी का ख्याल नहीं है तुम्हें? सबको मैंने बताया है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। चलो अब बहुत हो गया। मशल, उससे नहीं होगा। मुझे फोर्स मत करो। वो ढीठ हो गई। वो घर पर नहीं है, इसीलिए नहीं बता रही कि तुम्हें फिक्र होनी चाहिए। इसलिए बता रही हूँ कि तुम चलो नीचे, सबके साथ बैठो। हम फैमिली है तुम्हारी। किसी एक के लिए सबको नहीं छोड़ा जाता मेरी जान। हराम ने कुछ लम्हे से देखा। वो ठीक ही तो कह रही थी। वो उस शख्स के लिए सब अपनों को छोड़ रही थी। चलो। वो चलने को उठती, मशल उसका हाथ थामे उसे ले गई थी। वो अपने रिश्तों और अपने वादों की पक्की निकली थी। उसने कहाँ छोड़ा था इसे। हर मुश्किल में साथ रही थी। फिर हयाम कैसे उसे किसी दूसरे के बायस इग्नोर करती। वो जैसे मशल के साथ डाइनिंग रूम में दाखिल हुए, तमाम नजरों का रुख अपनी जानिब पाकर थोड़ी शर्मिंदा हुई। वो वाकई अपने तमाम रिश्तों से मुंह मोड़ रही थी। वो गलत थी, वो जान गई थी। उसे देखते ही सब पहले निदा उठकर खड़ी हुई थी। अरे मेरा बच्चा, शुक्र है तुमने अपना चेहरा तो दिखाया। तबीयत तो ठीक है अब? हयाम ने मशल को मुतशक्कर नजरों से देखा। जी अब ठीक है। अरे बेगम, उसे बैठने तो दे। सब बातें खड़े खड़े ही कर लेंगी क्या? हसन साहब ने अपना हिस्सा डाला। सब बैठ चुके थे। खाने के साथ बातों का सिलसिला भी जारी था। हयाम ने निगाहें उठाकर देखा, उसके सामने वाली कुर्सी खाली थी। आज वो मौजूद ना था। किसी को उसकी कमी महसूस ना हुई थी। वो अक्सर काम की वजह से गैर हाजिर रहा करता था, मगर आज हयाम को उसकी कमी महसूस हो रही थी। वो पत्थर दिल हो गई थी, लेकिन दिल जितना भी सख्त कर लो, कोई ना कोई शख्स होता है जिसके लिए दिल रुई के गाले से नर्म होता है, चाहे फिर सामने दिल का अपना कातिल ही क्यों ना बैठा हो। मशल ने हयाम का हाथ पकड़ उस पर दबाव डाला। वो हयाम की तवज्जो आरस पर से हटाना चाहती थी, और वो कामयाब भी हुई। हयाम सब सोचे छोड़कर खाने में मसरूफ हो गई। चलो भाई, खाना तो खा लिया। हयाम मेरा बेटा, आज अपने बाबा को अपने हाथ की बनी चाय ही पिला दो। मुस्तफा साहब ने उठते हुए फरमाइश की। जी बाबा, अभी बनाती हूँ मैं। वो भी सब छोड़ छाड़ कर चाय बनाने के लिए उठ गई। आज वो इतने दिनों में पहली बार मुस्कुराई थी। वो उसके बाबा थे। वो तो जान थे उसकी। घर के तमाम नफूस लिविंग रूम में बैठे गपशप लगा रहे थे जब हयाम और मशल चाय लिए अंदर दाखिल हुई। हयाम सबको चाय देकर वापस कमरे की तरफ जाने लगी जब हसन साहब ने उसे अपने पास बैठने को कहा। वो भी चुपचाप आकर उनके साथ बैठ गई। कोई नाराजगी है अपने ताया से? वो उसे अपने साथ लगाए पूछ रहे थे। नहीं, आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? मुस्कुराते हुए कहा। फिर भी कोई बात तो है। अरे कोई बात नहीं है, पक्का। आप तो मेरे दोस्त हैं, वो भी पक्के वाले। साथ ही आंख मारी। हाँ, ये भी ठीक है।
बाकी तमाम लोग ताया भतीजी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। देखे भाई, ये बीमार क्या हुई है, मेरी बेटी की तो आंखें ही बुझ गई हैं। मुस्तफा साहब ने अपनी बेटी को प्यार से तकते हुए कहा। कहाँ भाई, ठीक ठाक हूं मैं, बस थोड़ा सा बुखार ही तो था। अच्छा अच्छा, एक हल है मेरे पास, हयाम भी ठीक हो जाएगी और बाकी सबकी भी तसल्ली हो जाएगी। मशल ने तंग आकर बोलना शुरू किया। वो क्या? हयाम ने पूछा। खाला की तरफ चलते हैं, तुम्हारे बुखार के चक्कर में परी का बर्थडे मिस हो गया। मुझे तो हैरानी है, उसने कॉल तक ना किया, यकीनन नाराज होगी। उफ, मैं कैसे भूल गई। अच्छा ठीक है, कल सुबह चलेंगे। बस ठीक है, फिर हम सब साथ चलेंगे, जरूरी काम भी तो है हमें। इंदा बेगम ने साथ ही प्लान तरतीब दिया। हयाम ने जान लिया था कि वो जरूरी काम क्या था। एक मरतबा फिर उसका दिल बुझ गया था। चलेंगे, कहते ही वो सरदर्द का बहाना बनाकर वहां से उठ गई। मजीद वहां बैठना उसके लिए मुश्किल था, जबकि बासल की नजरों ने दूर तक उसका पीछा किया था। सैयदजादे, सुना है जब महबूब जुदाई का परवाना सुना देता है तो जुदाई महब के लिए फर्ज होती है और उस फर्ज से मुंह मोड़कर कफारा अदा नहीं होता। तुमने भी जुदाई मुझ पर फर्ज कर दी है तो दिल चाहता है कि इनकारी हो जाऊं, लेकिन मोहब्बत पर मबनी किसी किताब में ऐसा कोई बात नहीं जिसमें कोई कफारा ऐसा भी लिखा हो जो मेरे दिल के कहे पर आमीन कह दे। हाँ, एक हल मैंने तलाश कर लिया है। अब कि मेरे नसीब में जो स्याही घोल दी गई है वो पी लूंगी, मगर एक ऐसी किताब लिख दूंगी जिसमें मौजूद हर फर्क आने वाली तमाम नस्लों के दिल की गवाहियों पर ईमान ले आएगा। हर मोहब्बत की दास्तान में जब जब हिजर का सामान सजेगा तब तब उसकी तलाफी फर्ज होगी, उसका कफारा अदा किया जाएगा। तुम्हारी असीर सैयदजादी। वो अंधेरे कमरे में इस तरह से बैठा था कि हवेली के बरामदे की जानिब खुलने वाली खिड़की में सिर्फ उसका साया दिखता। पहली नजर में किसी होले का गुमान होता। हवेली का बरामदा खुले आसमान में बिखरी चांद की चांदी में नहाया हुआ मालूम होता। वो सुस्त कदम उठाती बरामदे के वस्त तक आई। काली चादर से खुद को ढके उसने चेहरा उठाकर उसी खिड़की को गौर से देखा जहां वो बैठा था। अपना रुख ऊपर की जानिब जाती सीढ़ियों की जानिब मोड़े वो तेजी से कदम उठाने लगी, यूं जैसे किसी काम की बहुत जल्दी हो। वो सीधा उसके कमरे से मुंसलिक उसकी खिड़की तक आई और वहीं ढेर हो गई। वो उसके वहां बैठते ही वो एकदम सीधा हुआ, नजरें बरामदे के चारों तरफ घूम रही थी, यूं जैसे किसी की मौजूदगी का डर हो। मेरा काम कर दिया आपने? वो उसे देखती सवाल कर रही थी। उसके हर अमल में बेचैनी वाजिया थी। बोले ना, मेरा बच्चा मिला आपको? आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं। उसने सामने बैठी एक माँ को अपने बच्चे के लिए तड़पते देखा। आंखें हर किस्म के जज्बात से आ रही थी। हाँ, मगर आंसू आज सालों बाद भी ना सूख पाए थे। कोशिश? पिछले 3 सालों से आप कोशिश के सिवा कर ही क्या रहे हैं? मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा ला दे। हिचकियों समेत रोने लगी। वो कुछ देर उसे यूं ही तकता रहा, फिर हाथ खिड़की से बाहर बढ़ाकर उसके सर पर रखा, जैसे यूं तसल्ली दे रहा हो। मैं ले आऊंगा उसे, वादा है मेरा, तुम्हारी झोली खाली नहीं रहने दूंगा। वादा? वो बच्चों की तरह पूछ रही थी। वादा? वो वादा लिए हर मर्तबा की तरह चली गई थी। पिछले 3 सालों से हर रात यूं ही होता आया था। वो यूं ही आया करती थी और उसके पास देने को सिर्फ तसल्ली ही हुआ करती थी। वो आईने के सामने खड़ी अपने अक्स को ही देख रही थी। सुर्ख सफेद रंगत, खुले बाल, स्याह लंबे बाल जो कमर से जरा नीचे तक थे, आसमानी रंग का लंबा कुर्ता जो उसके टखनों से जरा ऊपर आता था, खुले पांचों वाला हमरंग ट्राउजर, साथ सतरंगी दुपट्टा ओढ़े वो जमीन पर चांद की बासी मालूम हो रही थी। उसे रंग हमेशा से ही पसंद थे। वो थी भी रंगों की मानी, लेकिन आज वो मुख्तलिफ रंगों से रंगी बेरंग लग रही थी। अभी वो खुद को देखने में ही मगन थी कि मशल उसके कमरे में दाखिल हुई। माशाल्लाह, बहुत हसीन लग रही हो मेरी जान। हयाम को कंधों से थामे उसने मुस्कुराकर अपना चेहरा उसके सामने किया। ये भी अच्छी कही तुमने। वो हंसी, मगर उसकी हंसी में कितना दर्द था इसका मशल को बखूबी अंदाजा था। तुम भी अच्छी लग रही हो, मुस्कुराकर कहती वो सामान समेटने लगी। चलो आ जाओ, फैसल भाई इंतजार कर रहे हैं। इंतजार? वो क्यों? अरे नाश्ता बाहर करेंगे ना, देखो, मना मत करना, मैं कह रही हूँ, मेरी बात से इनकार करोगी? मासूम सूरत बनाए वो इसको बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी।
अच्छा मेरी माँ चलो। वो दोनों मुस्कुराती हुई नीचे लाउंज में आई तो सामने बैठे आरस को देखकर हायम की मुस्कुराहट सिमटी। वो उसे देख निदा बेगम उठी। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। नायला इसकी नजर उतार दो कि किसी की बुरी नजर ही ना लग जाए। इसके मुंह में कड़वाहट घुली। कोई नहीं बताता कि उसे नजर कहाँ लग सकती थी। उसके पास ऐसा कुछ था ही नहीं जो कोई छीन लेता। उसके पास तो वो खुद भी नहीं थी। वो खुद पर पड़ने वाली आरस की नजरों की तपिश महसूस कर सकती थी। इसकी बेचैनी शायद बादल ने महसूस कर ली थी जब भी बोल उठा। चलो मशल चलते हैं वरना देर हो जाएगी। मुझे तुम दोनों को छोड़कर ऑफिस भी जाना है। हाँ चले। चलो हयाम। वो उसका हाथ पकड़े बाहर चलने लगी मगर हयाम ने इसे रोका। क्या मतलब? अम्मा लोग नहीं जा रहे? बेटा अब लोग जाएं, हम लोग भी थोड़ी देर में निकल रहे हैं। जवाब मुस्तफा साहब ने दिया। वो उसे हयाम की फितरी झिझक समझ रहे थे कि शायद वो बादल के साथ जाने पर कतरा रही हो। रिश्ते की बात अब मंजरे आम पर जो आ चुकी थी। जी। वो अब क्या कहती कि वो भागना चाहती है लेकिन आज होने वाली कयामत का हिस्सा नहीं बनना चाहती। वो अपनी माँ का साया अपने साथ चाहती है कि उस तक आने वाली हर आफत को शायद उसकी माँ का आंचल अपनी बेटी तक पहुंचने से रोक दे। वो चल पड़ी थी कि उसका नसीब में लिख दिया जा चुका था कि वो नाजिल होने वाली कयामत की जद में आने वाली हर चीज के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाए। उसके जाते ही आरज ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। हयाम जिस तकलीफ से गुस्सा रही थी उसका हर्फ हर्फ आरज ने खुद इसके चेहरे पर अया पाया था। और ये गम की जो तहरीर थी वो उसने खुद ही तो हयाम की जमी पर उतारी थी जिसकी आग में वो आज झुलस रही थी। वो कितना गलत था। वो एक मर्तबा कोशिश तो करता। वो क्यों उसका नसीब न लिखी जाती। वो एक दफा उसके लिए अपने माँ बाप से लड़ता तो सही। ऐसा कैसे हो सकता था कि वो इनकार करते। वो क्यों कमजोर पड़ गया था। उसको अपने सामने क्यों सजा सवार देखकर आरस पर बेसुकूनी का गलबा तारी हो गया था। हयाम से कोई ऐसी गलती तो सरजद नहीं हुई थी जिसकी सजा वो इसे क्यों दे रहा था। वो खुले सहन की एक तरफ मट्टी का चूल्हा जलाए मकई की रोटी बनाने की कोशिश कर रही थी। हर मर्तबा रोटी छानते वक्त वो इससे टूट जाती और नए सिरे से उसे सब करना पड़ता। कच्चे बने मिट्टी के इस छोटे से घरौंदे में नाम का सिर्फ एक ही कमरा था। छोटा सा सहन जिसके एक तरफ बांस की छत तले दो चारपाइयां बिछी थी। चारपाइयों के बाएं जानिब वो चूल्हा रखी बैठी थी। दाएं जानिब छोटा सा गुसल खाना था जिसका दरवाजा टूट फूट के बाद उतरने के करीब था। आपा, आपा दे भी दे रोटी, भूख से मैं मर जाऊंगा। उसका छोटा भाई जो कब से भूखा था अब कमरे से आवाजें देने लगा। ठहर जा वीरे, बना तो रही हूं। मगर रोटी बनने को तैयार ही ना थी। मौसम भी आहिस्ता आहिस्ता खराबी इख्तियार कर रहा था। हवा जोर जोर से घरों के तरफ दीवार हिला रही थी। हवा के थपेड़ों से चूल्हा बुझने के करीब जाता तो वो एक हाथ से सुलगती लकड़ियों पर तेल छिड़कती। इतने में उसका भाई कमरे से निकल आया। उसके पास आ ही खड़ा हुआ। आपा, लगता है तुझसे रोटी नहीं बननी, और ये देख तो सारा तेल खत्म कर देगी। ऐसा कर तो रहने ही दे, मैं भूखा रह लूंगा। अम्मा कहाँ से लाएगी रोज रोज तेल। उसके कहने पर बैठी लड़की ने तेल को देखा। टीन का कनस्तर वाकई खत्म होने के करीब था। अभी वो सोच ही रही थी कि वो क्या करे। इतने में भग से चूल्हा बुझ गया। ले आपा, देख मैं कह तो रहा था। तो छोड़, सब अंदर आ जा, मौसम बहुत खराब हो रहा है। ये बेबे कब तक आएगी। वो कहता बहन के साथ चीजें समेटने लगा और साथ साथ सवाल भी किया गया। पता नहीं वीरे, सुन तू बहुत भूखा होगा ना, मैं साथ घर से तेरे लिए कुछ मांग लाती हूँ। वो जाने को उठ गई। रहने दे आपा, मुझे पता है तो कितनी खुददार है। क्यों मेरी खातिर अपनी खुददारी को इस राख की चिंगारियों में सेक रही है। हम गरीब हैं लेकिन बेगैरत नहीं है। तेरा वीरा एक रात कुछ नहीं खाएगा तो मर थोड़ी जाएगा। मुझे भी लकड़ियों के राख से उभरती चिंगारियों को देखकर वो इसे क्या कुछ समझा गया था। फिर सहन का जायजा लेने लगा कि कोई चीज रह तो नहीं गई। तसल्ली कर लेने के बाद वो अंदर चला गया। वहां खड़ी रही। कितना छोटा था उसका भाई और अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार। आंखों में आंसू आ गए। वो ठीक ही तो कहता था। वो गरीब तो थे और गरीबों को अपनी चादर ही में ही रहना चाहिए। चादर से बाहर मुंह झांके तो हकारत की नजरों के सिवा कुछ नहीं मिलता। वो आंसू साफ किए अंदर जाकर तख्त पोष के एक तरफ दीवार से टेक लगाए बैठ गई। सर्दी पहले से कदरे बढ़ गई थी मगर अल्हाफ के नाम पर सिर्फ एक चादर थी
जो घिस कर बारीक हो चुकी थी। न जाने कब बैठे बैठे वो नींद की वादी में उतर गई। आंख खुली तो कमरा सूरज की आती रोशनी से चमक रहा था। गर्दन घुमाकर देखा तो उसके सिवा वहां कोई भी मौजूद न था। बाहर सहन से उसके भाई की दबी दबी आवाज आ रही थी। वहां से उठती बाहर को आई तो सामने उसकी अम्मा चूल्हे को जलाए रोटी सेक रही थी। सलाम बेबे, तो कहती अपनी अम्मा के करीब आ बैठी। वालेकुम सलाम। नींद पूरी कर ली मेरी सोनी धी ने? आपा देख बेबे हवेली से क्या क्या लेकर आई है। उसका भाई शौक से उसके बर्तन का ढक्कन उठाते अंदर रखा कौरमा दिखा रहा था। बेबे ये तो हवेली से लाई है। हाँ, और कहां से लाएगी तेरी माँ? तो क्यों लाती है वहां से उनका बचा हुआ खाना? मैं भूखी रह लूंगी, किसी का झूठ नहीं खाऊंगी, वो हकारत से बोली। तो उसकी माँ ने उसे गुस्से से देखा। तू ना खा आपा, बेबे तू मुझे दे दे, मैं खा लूंगा। मुझे भूख लगी है बेबे, सारी रात का भूखा हूं। जा तू अंदर बैठ बैठ के रोटी खा, मैं जरा तेरी आपा से दो बातें कर लूं। साथ ही सादा रोटी पर सालन डालकर उसे पकड़ाया। वो खुशी खुशी अंदर को भागा। तेरी माँ गरीब जरूर है सादिया, मगर अभी इतनी जलील नहीं हुई कि अपनी औलाद को दूसरे के मुंह का निवाला खिलाए। और तो हवेली वालों के इतने खिलाफ क्यों है? कोई झूठ नहीं देते, वो खुद खाने से पहले मुलाजमों को देते हैं, तो झूठ बोलती है बेबे। आंसू बहने लगे। तू जो चीजा है मान, मेरी गल कान खोल के सुन ले। हम जो गरीब होते हैं ना, तो दूसरों के मुंह से उगला निवाला भी खाने को मिल जाए तो शुक्र अदा करते हैं। 2 दिन का भूखा रहना पड़ जाए ना, तो सारे कष्ट बल निकल जाए। गरीब की बेटी है तो गरीब की, तेरी अम्मा बस बशीरा है, बशीरा बेगम नहीं है। वो कहते ही अंदर को चली गई, जबकि वो पीछे बैठी चलते चूल्हे को तकती रही। वो कमरे में एक तरफ रखे सोफे पर बैठा सामने लैपटॉप पे की काम करने में मसरूफ था। दरवाजे पर होने वाली एक दस्तक ने उसे सर उठाने पर मजबूर किया। आ जाएं। उसके कहने की देती इजाजत मिलते ही मिनाल फौरन अंदर दाखिल हुई। वो सर पर दुपट्टा फैलाए हुए थी। हाँ, फर्क बस इतना था कि हवेली की औरतों की तरह वो चादर नहीं थी। भाई, वो बोलते हुए शामिर के साथ सोफे पर बैठ गई। जी भाई की जान। वो मुस्कुराकर उसे देख रहा था। आप शहर कब जाएंगे? निगाहें कभी कमरे के चारों तरफ घूमती तो कभी सोफे के साइड पर रखी छोटी सी टेबल पर मौजूद गुलदान को घुमाकर जायजा लिया जाता। क्यों, कुछ चाहिए? नहीं चाहिए तो कुछ नहीं, भक्का लिया गया। वो एक बात करना थी। वो एकदम सीधी हुई। बताओ क्या बात है? आप आरस भाई की मंगनी पर जा रहे हैं क्या? तुम्हें किसने बताया कि उसकी मंगनी है? वो अम्मा बात कर रही थी ना, अम्मी जान से तो मैंने सुन लिया। उन्हें चटकती वो यूं जैसे अपनी गलती का एतराफ कर रही थी। बुरी बात है, किसी की बात छुप कर नहीं सुनते, और अगर सुन ली जाए तो कभी किसी तीसरे को नहीं बताते, चोरी होती है। लहजा हमेशा की तरह ठहरा हुआ था। जी भाई, लेकिन बताए ना, आप जाएंगे? हाँ जाऊंगा, मुझे भी जाना है। डर डर कर बोलती वो असल मुद्दे पर आई। मनाहिर, शामिर की पेशानी पर बल पड़े। भाई मैं आपके साथ जाऊंगी ना, बस देखिए मुझे बहुत शौक है आरस भाई से मिलने का। आप उनकी इतनी बातें करते हैं, मुझे मिलना है उनसे। वो शामिर का बाजू पकड़े इल्तिजाई नजरों से देख रही थी। मुनाहिर, आखिरी मर्तबा ये बात अपने जहन में बिठा लो कि इस हवेली के दरवाजे ना तो किसी औरत के लिए खुले हैं और ना खुलेंगे। मैं अम्मा से बगावत नहीं कर सकता। तुम मुझे बहुत प्यारी हो, फिर भी नहीं। वो उसे प्यार से समझा तो बहुत कुछ बावर करवा गया। जी चलती हूँ, वो कहते साथ ही कमरे से निकल गई। आंखों से आंसू चमकने लगे थे। कमरे में आते ही वो आंसू बहाने लगी। दरवाजा खुलने की आवाज पर सीधी हुई रुख मोड़कर आंसू साफ किए, लेकिन आने वाले की आंखों से ये मंजर छुपा ना रह सका। गुड़िया तुम रो रही हो? मनाल आपी, नहीं तो ये आंखों में कुछ चला गया था, वो मुस्कुराकर कहती मासूम से सूरत बना खड़ी हुई। बताओ मुझे क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा? उसे अपने साथ बिठाए वो उसे प्यार से पूछ रही थी। उसके पूछने की देर थी मिनाल की आंखों से टपका टपका आंसू बहने लगा। आपी, वो भाई, वो रो रही थी। नहीं मिनाहिल, मैं मान ही नहीं सकती कि वो तुम्हें कुछ कह सकते हैं। मिनाहिल मजीद रोने लगी। अच्छा बताओ क्या कहा उन्होंने? मैंने बोला था मुझे शहर जाना है, मगर डांटा है उन्होंने। कहती इस हवेली के दरवाजे कभी किसी औरत के लिए नहीं खुलेंगे। मिनाहिल की आंखों में एक तारीख सा साया लहराया। ठीक कहते हैं वो, आवाज सहमी थी।
آپ کو گھٹن نہیں ہوتی ہے اس حویلی میں؟ آپ ہی مجھے کسی قیدی کا گمان ہوتا ہے؟ میں باہر کی دنیا دیکھنا چاہتی ہوں۔ نہیں، مجھے گھٹن نہیں ہوتی۔ تمہیں پتا ہے گھٹن تو اس حویلی کے باہر ہے، اور باہر کی دنیا بہت ظالم ہے میری جان، اور تم تو شہزادی ہو۔ شہزادیاں کبھی اپنے محلوں سے باہر نہیں نکلا کرتی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے نہ جانے کون سی زبان بول رہی تھی، اتنی گہری باتیں اس کی سمجھ سے تو باہر تھی۔ شہزادیوں کو بھی سونے کے پنجے والا کبھی اچھے لگے ہیں؟ اس کے پاس ہر جواب کے بدلے نیا سوال تیار تھا۔ کوئی گیس آج کی ایپیسوڈ کے لیے اتنے، پھر ملتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔